Good morning and welcome dear viewers to this FP Live by Tricolor Hospitals. I hope you all are doing well. Today we are going to talk about sugar in pregnancy, which is also called gestational diabetes mellitus. We are glad to have Dr. Vishwa Unadkat with us, who is a well-known doctor of Tricolor Hospitals. Dr. Unadkat is a senior consultant and diabetologist in Tricolor Hospitals. He is an MBBS, MD, and has done his postgraduate diploma in endocrinology and diabetes. He has done his fellowship in diabetes from UK. We are glad to have you, doctor, and hope that we as viewers, will have all the answers to many common and uncommon questions through this FB Live. I welcome you, doctor. Yeah, thanks a lot. Probably ये कोविड के टाइम पे इट्स आवर फोर्थ और फिफ्थ Facebook live session in various aspects of diabetes. And today we are in probably sense of relief because पिछले कुछ टाइम से बड़ौदा और आसपास के रीजन में कोविड के केसेस काफी कम है. फेस्टिवल मौसम भी अभी आ गया है, जैसे एक के बाद एक फेस्टिवल अगले 1-2 महीने में है. सो आई होप यू ऑल आर इन very good frame of mind as well as health, and I wish you all the best health. And please, if you have not taken vaccine yet and not completed both of the doses of the vaccine, please go and take it immediately. Yes, please. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, so quickly I'll move forward to this session. Sir, my first question would be, what is gestational diabetes? Yes, so as the name suggests, gestational is basically anything related to the pregnancy of a mother, right? So जो भी डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान डायग्नोस्ड होता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं. नाउ इसमें थोड़ी अगर हम इन डेप्थ इंसाइट ले तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि पेशेंट को पहले से ही शुगर हो बट उसको पता ना हो. ठीक है, खास करके इंडिया अभी भी इट्स अ वेरी फास्ट डेवलपिंग कंट्री एज फार एज हेल्थ केयर इज कंसर्न, बट there are many of pregnancy which occur before pre-conceptional counseling, right? मतलब प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले का जो काउंसलिंग है, पहले के जो रिपोर्ट्स है, पहले का जो हेल्थ चेकअप है, वो अभी भी बहुत सारी जगह पे नहीं होता था. वी डू कम अक्रॉस मेनी ऑफ डायबिटिक प्रेग्नेंट पेशेंट जिसको हम समझ जाते हैं कि ये पहले से होगा बट ये डायग्नोस प्रेगनेंसी में हुआ है. सो दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग, जो ट्रू जेस्टेशनल डायबिटीज है वो आमतौर पे कहा जाता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट बनती है तब वो डायबिटीज नहीं होता, बट एज प्रेगनेंसी पासिस ऑन, स्पेसिफिकली आफ्टर 18, 20, 24 वीक्स प्रेगनेंसी के चले जाते हैं, मतलब 5 से 6 महीने चले जाते हैं, उसके बाद डायबिटीज उसको आता है. सो दैट इज ट्रू जेस्टेशनल डायबिटीज, राइट? बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, any diabetes which is diagnosed during these 9 months, चाहे वो पहले मंथ में था या छठे मंथ में था, these all are we are considering as a gestational diabetes, right? And second point that we need to consider here, that India, as we have discussed previously in many of the session, in India we have become the capital of diabetes all over world. बहुत ही ज्यादा केसेस है हमारे, नए नए आ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो प्रिडिक्शन किया गया है, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल अथॉरिटीज ने, सोसाइटीज ने, आगे 15-20 साल में ये परिस्थिति और बिगड़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज फार एज द नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इज कंसर्न. तो सिमिलरली प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज का इंसिडेंस काफी हाई है. अगर हम कुछ रजिस्ट्री देखें, इंटरनेशनल रजिस्ट्री खास करके, इंडियन रजिस्ट्री अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जो भी अवेलेबल डेटा है that suggests that around 1 to 2% of all pregnancy are having diabetes, right? Having said that, we need to consider that India is still a country, a developing country, where the institutional delivery, या फिर जिसको हम बोले कि प्रेगनेंसी के 9 महीने में जो हॉस्पिटल का चेकअप्स रहते हैं, ANC केयर जिसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं, वो अभी भी it ranges from state to state, but there are on one side there is a state like Kerala where almost 99% of deliveries are institutional deliveries. There is no home delivery. So these all are the
pregnant females, which has been very good taken care in their antenatal period. But at the Right. same time, there are states like Nagaland where the institutional delivery rate is just 30 to 40, right? So you can imagine that whatever registry India is having right now, it may be very well be underestimating the number of diabetes patient in pregnancy, right? Because सारे पेशेंट की अभी भी रजिस्ट्री नहीं हो रही होगी, खास करके जो होम डिलीवर होते हैं, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, बहुत सारी जगह पे अभी है, दैट गोज अनरजिस्टर्ड एट मेनी लेवल। वो प्रेग्नेंट फीमेल का चेकअप नहीं होता है, पता नहीं रहता है उसको शुगर था नहीं था, ठीक है। सो फिर भी पुटिंग ऑल दोस पॉइंट असाइड, द नंबर ऑफ pregnancy related diabetes is on very high side in India, and we must take care of this, as we know that, as you have seen in our previous session, that diabetes is having chronic disease. It has very bad impact as far as our overall quality of life is concerned, Right. cardiovascular disease is concerned, vital organs are concerned, right? तो प्रेगनेंसी में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ हम मदर का केयर कर रहे हैं, बट हमें बच्चों की भी फिक्र है। So that is why this gestational diabetes imposes a very, very big challenge in our day-to-day clinical practice. Yes, next question, please. Right, sir. So next question is how to diagnose gestational diabetes. So basically it is very simple. जैसे अगर जेस्टेशनल डायबिटीज को साइड में रख के अगर हम डायबिटीज की बात कर ले, तो एक सिंपल चीज है कि भाई आपका फास्टिंग शुगर 10 से 12 घंटे के फास्ट के बाद का शुगर अगर 126 से ज्यादा है, या फिर खाने के 2 घंटे बाद का शुगर, या फिर 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद का शुगर अगर 200 से ज्यादा है, तो इसको डायबिटीज कहलाता है, जो नॉर्मल पर्सन की बात करें तो। बट प्रेगनेंसी में देयर आर वेरियस सोसाइटीज जिसने अपनी एक गाइडलाइन दी हुई है कि कैसे टेस्ट करना है, खाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद के, या फिर शुगर देने के 1 घंटे 2 घंटे बाद के शुगर वैल्यूज कितनी है, उसके ऊपर डायग्नोसिस मेंशन है। बट अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो वेरी कॉमनली फॉलोड प्रोटोकॉल इज समथिंग नोन एज डिप्सी प्रोटोकॉल। उसमें काफी सिंपल चीज है कि रिस्पेक्टिव ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल हु इज कमिंग फॉर एंटीनेटल केयर, उसको 75 ग्राम ग्लूकोज देके, एनहाइड्रस ग्लूकोज देके, उसको 2 घंटे बाद उसका शुगर चेक कर लो। चाहे वो 75 ग्राम शुगर लेने से पहले वो फास्टिंग स्टेज में थी, नाश्ता करके आई थी, खा के आई थी, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम उसको 75 ग्राम ग्लूकोज देके उसके 2 घंटे बाद शुगर चेक करेंगे। अगर वो शुगर 140 से ऊपर है, then it is confirmed that it is gestational diabetes or that is diabetes in pregnancy, right? So very simple thing, right? ये क्राइटेरिया इसलिए बोला गया है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो विलेज प्लेस से आते हैं सिटी में चेकअप कराने, तो सुबह जल्दी उठ के आने वक्त, या फिर लंबी जर्नी करते वक्त, या टाइमिंग ओड होने की वजह से बहुत बार वो फास्टिंग स्टेज में नहीं आते, उसको कुछ ना कुछ चाय ले लिया, नाश्ता ले लिया, रात का खाया लेट था, सुबह जल्दी खा के निकलना पड़ा, बहुत सारी चीजें अटैच रहती है इसमें। सो डिप्सी क्राइटेरिया, इट इज वेरी प्रैक्टिकल क्राइटेरिया इन कंट्री लाइक इंडिया, कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ फास्टिंग स्टेट आप 175 ग्राम ग्लूकोज दे दो, 2 घंटे बाद का वीनस शुगर चेक कर लो, एंड इफ इट इज मोर देन 140 देन द डायग्नोसिस इज देयर दैट द लेडी इज हैविंग gestational diabetes now, right? So that is about diagnosis. Okay, sir. So the next question is which women are at risk? Oh, that is a very very important point, right? कि इसको हम 2 तरीके से आंसर करेंगे कि सबसे पहले तो रिस्क कौन से लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज का ज्यादा है। सो इट इज वेरी नीडलेस टू से कि जो फीमेल्स ओबेस है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स 30-35 के ऊपर है, दे आर एट वेरी हाई रिस्क। जिसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, चाहे उसका खान पीने की आदतें ठीक नहीं है, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो वो लेडी आर एट रिस्क। अनफॉर्चुनेटली एथनिसिटी की अगर हम बात करें, कि जैसे इंडिया है, इंडिया की लेडीज को हम आमतौर पे हाई रिस्क पॉपुलेशन में कंसीडर करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, राइट? सो दैट इज अगेन अ वेरी बिग फैक्टर। लास्टली, जिसको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, जिसके पेरेंट्स को, जिसके सिबलिंग्स को शुगर है, सो दैट पर्टिकुलर लेडी व्हाइल बीइंग प्रेग्नेंट शी हैज हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ GDM, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। देन अगर प्रीवियस डिलीवरी में आपको डायबिटीज आया था, तो नेक्स्ट डिलीवरी में डायबिटीज आने की संभावना काफी बढ़ जाती है, इट इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली देयर। थर्डली, अगर आपका प्रीवियस डिलीवरी में
डायबिटीज शायद नहीं था या नहीं पकड़ में आया था, बट आपका अगर बच्चू जो था, अगर वो बच्चू मैक्रोसोमिया मतलब 4 किलो से ज्यादा उसका अगर वेट था, then it is almost certain that lady must be having diabetes, and this lady is of future development of gestational diabetes in upcoming pregnancy as well, right? So these are some of the risk factor of gestational diabetes. But having said that, regarding risk, I would like to emphasize over here that in India, in country like India, it has been suggested by the authorities that the screening regarding gestational diabetes has to be universal. मतलब हमें सारी प्रेग्नेंट फीमेल को कम से कम एक बार और अगर हो सके तो 2 बार स्क्रीनिंग करना है कि उसको शुगर है कि नहीं। तो कब वो करेंगे, तो स्पेसिफिकली जो पहला स्क्रीनिंग हम करेंगे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करेंगे, एज सुन एज द प्रेगनेंसी इज कंफर्म। सो 8-10 वीक के बाद यू चेक विथ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो हमने 75 ग्राम ग्लूकोज वाली बात की थी उसको ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। तो शुरुआत के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप उसको एक बार चेक कर लो, अगर फॉर्चुनेटली तब शुगर नहीं है तो देन यू चेक आफ्टर 5 or 6 months अगेन विद द सेम मोडालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक बार ग्लूकोज देने के बाद वापस 2 घंटे बाद अगर उसके बाद भी 140 नहीं है, देन यू आर लकी इनफ, एंड द चांसेस बिकम्स लेस देन अपकमिंग मंथ्स वो अगर नहीं है। बट अगर हाई रिस्क है फिर भी हमें वॉच रखना है। बट एटलीस्ट सारे प्रेग्नेंट पेशेंट को अगर एक बार 2 बार नहीं तो एटलीस्ट एक बार हमें स्क्रीन करना है जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए, राइट? Okay, sir. Right, sir. Sir, next question is, what is the health impact of gestational diabetes? Again, a very very big question, right? कि ये आज हम यहाँ पे इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं। जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया कि भाई जेस्टेशनल डायबिटीज आता है तो नॉट ओनली इट कैन इम्पैक्ट मदर, but the impact of fetus is as well that we are concerning, right? So ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम आंसर 2 फेज में देंगे। पहले हम हेल्थ इफेक्ट ऑफ मदर देख लेते हैं कि भाई वो भी डिवाइडेड है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान मदर को क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी के वक्त क्या दिक्कत आएगी, आ सकती है, या और उसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, राइट? तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है, राइट, तो उसकी वजह से आपका जो कहा जाता है कि भाई नॉर्मल प्रेगनेंसी में अराउंड 10 to 15 किलो वेट गेन होना चाहिए। तो आपका ये जो वेट है वो गेन अल्टर होगा, ठीक है? या तो आप बहुत ज्यादा गेन कर लोगे या फिर अनफॉर्चुनेटली वो जो गेन है वो ठीक से नहीं हो पाता। बोथ थिंग कैन हैपन विथ मदर। Secondly, there is a high risk of development of pre-eclampsia. So what is pre-eclampsia? So in normal words इसको हम बोल सकते हैं कि high blood pressure during pregnancy, right? So that is again a very big challenge, very big complicating factor as far as the pregnancy concerned, pre-eclampsia. Thirdly, जो लीकर है, जो बच्चों के आसपास जो फ्लूइड रहता है जिसको लीकर बोला जाता है, उसकी मात्रा में अल्टरेशन होना, खास करके पॉलीहाइड्रोएमनियस हो जाना, that is a risk factor in patient with GDM, right? So what happens that because of this, जब पेशेंट जब मदर लेबर में जाते, डिलीवरी के वक्त के अगर टाइम की हम बात करें, तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से लेबर ठीक से ना होना, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, प्रोलॉन्ग्ड हो जाना, जिसकी वजह से असिस्टेड डिलीवरी करानी पड़े या फिर सिजेरियन कराना पड़े, इसका रिस्क बढ़ जाता है मदर को। एंड वंस वी इंडल्ज इनटू ऑल दिस प्रोसीजर्स, असिस्टेड डिलीवरी या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिजेरियन, द रिस्क ऑफ ऑल दिस इंक्रीजेस, राइट? तो खास करके इन्फेक्शन के दौरान या ऑपरेशन के दौरान या उसके बाद इन्फेक्शन लग जाना, पोस्टमार्टम सेप्सिस होना, हेमरेज हो जाना, ये सब रिस्क ये प्रेग्नेंट मदर को बढ़ जाता है, राइट? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के भाई चलो आप लकी इनफ हो, आपने प्रेगनेंसी के दौरान शुगर मैनेज कर लिया, डिलीवरी भी ठीक से हो गई, हेल्दी बच्चू हाथ में आ गया, तो चीजें वहां खत्म नहीं हो जाती। Once there is a diabetes during pregnancy, so there are chances that more than 90% जो प्रेगनेंसी के बाद आपके शुगर वैल्यूज नॉर्मल हो जाने वाले हैं। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, इंसुलिन था, गोलियां थी, जो भी था, there is a chance कि प्रेगनेंसी के बाद आपको वो जरूर नहीं पड़ेगी। बट कहानी वहां पे खत्म नहीं होती। Once आप there is a gestational diabetes, any delivery, any of your delivery,
that gives you that puts you at higher risk of future development of type 2 diabetes mellitus and related complications, right? तो ऐसी रजिस्ट्री में पाया गया है कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज था तो अगले 10 साल में आपको टाइप 2 डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी 40% तक है. दैट इज वेरी वेरी हाई रिस्क, राइट? So not only type 2 diabetes, the development of high cholesterol, blood pressure, metabolic syndrome per se, उसकी वजह से various heart and kidney के ऊपर के complication and what not. These all are risks that we are always worried of. These are very high in pregnant mother who had diabetes during the pregnancy, right? Now coming to the fetus health impact, दोनों तरह से चीजें पॉसिबल है. जैसे हमने बात किया कि लार्ज फीटस आना, मतलब अगर इंडिया में कहा जाए तो 3 to 3.5 किलो नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ फीटस. जब न्यूबॉर्न आता है हाथ में, हमारा बर्थ होता है बच्चों का, तो 3-3.5 किलो का वेट है. बट अगर 4 किलो तक जाता है देन देयर इज अ चांसेस कि मदर को डायबिटीज था. सो सिमिलरली जेस्टेशनल डायबिटीज में फीटस जो रहता है उसका वेट ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है. सेकंडली, अगर आपको शुरुआत के टाइम पे ही डायबिटीज था और आपको पता नहीं था, और खास करके वो डायबिटीज अनकंट्रोल था, राइट, तो ऐसी परिस्थिति में जब ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है शुरुआत के वीक्स में, खास करके पहले 8 वीक में या उसके आजू बाजू के टाइम में, तो कंजेनिटल डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. जो खास मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स या फिर कार्डियोवास्कुलर हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट्स, ये बच्चों में आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी नॉर्मल पॉपुलेशन से बढ़ जाती है, राइट. सेकंडली, जैसे हमने बात किया था कि प्री एक्लेम्सिया मदर को होता है, सो जीडीएम एंड प्री एक्लेम्सिया दे आर वेरी बैड कॉम्बिनेशन. तो ऐसे मदर को जो बच्चों में इम्पैक्ट की अभी जो हम बात करें, तो इसमें इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होना, लो वेट फॉर जेस्टेशनल एज, मतलब एक तरह से हाई वेट की भी हम बात कर रहे हैं, बट अगर उसको साथ साथ में प्री एक्लेम्सिया है जिसकी वजह से उसके प्लेसेंटा में वास्कुलोपैथी अगर हो जाती है, तो उसमें ब्लड फ्लो फीटस का कम हो जाता है, उसका न्यूट्रिशन, इंट्रा यूट्राइन न्यूट्रिशन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ अटक जाती है, रिटार्ड हो जाती है. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है बच्चे में, राइट. अगेन, अगर ये बच्चों जब डिलीवरी के टाइम पे अगर हम बात करें, तो अगर जो मैक्रोसोम या लार्ज बच्चों था उसमें अगेन देयर इज अ चांस ऑफ कि उसको सीपीडी हो जाता है, तो सिजेरियन लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. अगर नॉर्मल लेबर का ट्रायल देते हैं तो बर्थ इंजुरी होना, शोल्डर डिस्टोसिया हो जाना, उसकी वजह से शोल्डर जॉइंट मसल या फिर खास करके आसपास के नर्व है जिसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, उसमें वेरियस लेवल की इंजरी होना काफी कॉमन हो जाता है जब लार्ज बच्चों रहता है. तो या फिर अगर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बच्चों है तो प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. हो सकता है कि आपके 34-36 वीक्स हो गए प्रेगनेंसी के, बट लंग मैच्योरेशन अचीव नहीं हुआ है बच्चों का बिकॉज ऑफ प्री एक्लेम्सिया, बिकॉज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज व्हिच वाज नॉट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड. देन देयर आर चांसेस के बर्थ के वक्त या बर्थ के इमीडिएटली बाद बच्चों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए, ठीक है, तो उसको इमीडिएटली बाद उसको आईसीयू में लेना पड़े, एनआईसीयू में लेना पड़े. अगर ग्रोथ ठीक नहीं था तो इंक्यूबेटर में रखना, बाहर से न्यूट्रिशन देना, ये सब चीजें आप अभी आजकल के टाइम में काफी कॉमनली सुनते हैं. तो दिस इज कॉमन विद दिस टाइप ऑफ बच्चों, राइट. और खास करके वहां पे चीजें अटक नहीं जाती. जैसे हमने मदर में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात की, वैसे ही अगर बच्चों हेल्दी भी आया है, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज मदर को अगर जो बच्चों आया है वो हेल्दी है, still at once this particular kid becomes an adult, he or she is at very high risk of development of metabolic disorders. खास करके ऐसे पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज आना, ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी होना, या फिर अगेन एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज. दिस पर्टिकुलर kid who has been born to the mother having gestational diabetes, this kid has a higher risk of development of all these complications in future, right? So these all are in general the health impact which is very very vast of gestational diabetes. ओके सर, सो आपने इतनी सारी बातें बताई, बट इसमें हमको एक चीज और जाननी है कि जेस्टेशनल डायबिटीज को ट्रीट कैसे किया जाता है सर? यस, एग्जैक्टली. तो जैसे हमने देखा कि जेस्टेशनल डायबिटीज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, तो कोई भी ट्रीटमेंट चालू कब होगा कि भाई आपने चेक किया है तब. तो जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है, तो ये हर एक लोग जो अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या बाद में सुनने वाले हैं,
सो आपके फैमिली में, आपके सर्कल में, आपके आजू बाजू में जब भी कोई प्रेग्नेंट फीमेल आएगी, उसके चेकअप होते ही रहेंगे। तो ask them to perform glucose tolerance test. Simple blood sugar most of the time gives good idea, but we would like to go for glucose tolerance test that will accurately give the diagnosis of gestational diabetes, right? So सबसे पहले पॉइंट है कि डायग्नोसिस होना। शुरुआत के टाइम पे आपको एक बार चेक करना है, अगर शुरुआत में नहीं है तो आपको 5 से 6 महीने बाद वापस चेक करना है, अगर हाई रिस्क है तो उसके बाद भी देखते रहना है, राइट? सो वंस यू कम टू द डायग्नोसिस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, देन इट इज अ टीम अप्रोच, राइट? It is not, it can never be managed by only with diabetes doctor या फिर only with obstetrician or gynecologist. We need a very good team approach. We need a very good education level of patient, और उस पेशेंट के जो केयर टेकर है उसको एक लेवल से हमें एजुकेट करना है। डाइट एंड एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम सिंपल जेस्टेशनल डायबिटीज की बात करें, सो मोर देन 60-70% ऑफ टाइम you will get away with just simple dietary measures and some basic exercises, right? तो प्रेगनेंसी के फेज के अकॉर्डिंगली आपको ऑब्वियसली आपके पेट में एक बच्चू ग्रो हो रहा है तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, राइट? तो जो खास करके हम डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपका कैलोरी, आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम माइल्ड टू मॉडरेट रिडक्शन करवाते हैं। तो ये जो प्रेगनेंसी में जो डाइट प्लान करना है वो अकेले डॉक्टर भी नहीं करेगा, आपको जो क्वालिफाइड डाइटिशियन है उसके पास भेजेगा। आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर ट्राइमेस्टर, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी प्रोफाइल डिसाइड किया जाएगा। उसमें आपको कितनी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेनी है, कितना फैट लेना है, कितना रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपको कीटोसिस डेवलप ना हो जाए और बच्चों का ग्रोथ भी हैम्पर ना हो जाए, एट द सेम टाइम आपका शुगर कंट्रोल में रहे। तो दिस इज एन एक्सपर्ट बॉल गेम। तो आपको क्वालिफाइड डाइटिशियन with the recommendation of your diabetes doctor that you need to be getting into touch with, right? Secondly, in consultation with your obstetrician, with your gynecologist, depending on the risk of your pregnancy, आपको बेसिक एक्सरसाइज खास करके वॉकिंग से लेके जो हम योगा वगैरह एडवाइस करते हैं वो आपको अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड यू मस्ट इंडल्ज योरसेल्फ इनटू द एक्सरसाइज। सो जैसे मैंने बोला 60-70% केसेस में जेस्टेशनल डायबिटीज जो है उसमें ये इससे कंट्रोल आ जाता है अच्छे से। बाकी अगर आपका पहले से शुगर था, आपको पता नहीं था और वो ध्यान में आया है, या फिर डाइट और एक्सरसाइज से अगर ये शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फिर आपको मेडिकेशन की आवश्यकता रहती है। और जैसे बोला जाए तो द रिकमेंडेड मेडिसिन इज इंसुलिन, इंसुलिन एंड इंसुलिन, राइट? सो आमतौर पे जेस्टेशनल डायबिटीज में जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी काफी कम है, अनलेस यू हैव बीन हैविंग वेरी हाई ब्लड शुगर, अनकंट्रोल शुगर अगर पहले से नहीं होता तो जो ट्रू जेस्टेशनल डायबिटीज में 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट दिन के या 15 से 20 यूनिट में आपका काम चल जाता है। आपको जो मेजर मिल है उसको कवर करना है अच्छे से, दैट योर डायबिटीज डॉक्टर विल गाइड यू फॉर दैट। अगर आप इंसुलिन नहीं लेना चाहते हो तो मेटफॉर्मिन जो मेडिकेशन है जो टाइप 2 डायबिटीज में द फर्स्ट मेडिकेशन दैट वी ऑलवेज ट्राई टू गिव अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड इज मेटफॉर्मिन, which is there that we can give, and there are some other medication which are not absolutely safe but they are not unsafe as well. So your doctor might discuss with you कि अगर आप इंसुलिन नहीं ले रहे हो, नहीं लेना चाहते हो, मेटफॉर्मिन somehow टॉलरेट नहीं होती या उससे कंट्रोल नहीं होता, तो there are other 1 or 2 medication is there with your consent, with thorough understanding of the molecule that you can be offered. But in most of the time with insulin it is very well, insulin diet and exercise is very well controlled, right? So यहाँ पे मैं एक चीज खास बोलना चाहूंगा कि अगर इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं आता, there are many patient which comes to me and I'm sure many other doctor must be feeling the same कि बहुत बार इंसुलिन से कंट्रोल नहीं आता है। तो या फिर आपने इंसुलिन का जो आपका चॉइस है, आपको जो रिकमेंड किया गया है, वो इंसुलिन को आपको रिकंसीडर करना है कि आर यू टेकिंग प्लेन इंसुलिन या मिक्स इंसुलिन चल रहा है, आपका कोई मील तो बगैर इंसुलिन कवर के चला तो नहीं जा रहा है। सो व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ अनकंट्रोल शुगर, ये आपको देखना है। अगर जरूर पड़ता है तो इंसुलिन का डोजेज एडजस्ट करना है या फिर इंसुलिन को चेंज करना है, या वेरी रेयरली यू नीड टू चेंज डॉक्टर एज वेल, राइट? बट द पॉइंट आई वांट टू पुट फॉरवर्ड हियर कि देयर इज नो शुगर व्हिच कैन बी लेफ्ट अनकंट्रोल्ड। अगर 2-5 दिन में अगर ठीक से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो डोंट कंटिन्यू लाइक दैट। भाई मेरा तो 200 आता ही है सर, मैं तो हमने
हमने सुना है हमारी फैमिली हिस्ट्री है, सबको 200-250 रहता है. दिस इज नॉट द वे टू गो इन प्रेगनेंसी, राइट? द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज डिजास्ट्रस एंड स्टिल वी हैव दिस टाइप ऑफ पेशेंट वेरी रूटीनली. सर 300 तो रहता है मेरा, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. अगर प्रेगनेंसी में ये चीजें रहती है तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है. आपका जो ऑनगोइंग डाइट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है, इंसुलिन मेडिकेशन प्रोटोकॉल है, उसको जल्द से जल्द ठीक करना है. एंड द स्पेसिफाइड शुगर वैल्यूज विच इज रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसीज के जैसे आपका फास्टिंग वैल्यू हो 90 to 95 रहना चाहिए. आपका खाने के बाद का है 120, एट द मैक्स 140 शुगर रहना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग इन मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज. सो 200-300 तो बात भूल ही जाओ. वैसे नॉर्मल पेशेंट में भी हम बोलते हैं कि इतना नहीं आना चाहिए, बट समटाइम्स विद सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन वी स्टिल अलाउ के आपका टारगेट इसको हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं. बट प्रेगनेंसी इज नॉट दैट फेस, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग मेकिंग दिस सेंटेंस जनरलाइज कि हमारे फैमिली में तो ये है, 200 तो आता ही है, सर मुझे कुछ होता नहीं है, 300 आए तो भी मैं तो ठीक रहता हूँ. दिस इज नॉट द थिंग दैट यू शुड बी बैंकिंग इन डायबिटीज, राइट? सो डाइट, एक्सरसाइज, insulin, and if needed medication, these are the pillars of controlling sugar during pregnancy. Yes, Very important message sir has given, that please do not take this sugar wala thing very lightly. Please do not take this very lightly. Sir, next question is pregnancy an indication for cesarean section? सी सिजेरियन सेक्शन के दो इंडिकेशन है, या तो मैटरनल या फिर बच्चों का. ठीक है? सो कोई कंडीशन जो मैटरनल हेल्थ को या फिर बच्चों के हेल्थ को डायरेक्ट इंडेंजर करती है, वही परिस्थिति में सिजेरियन इंडिकेटेड है. बट अगर आप ऐसा बोले कि भाई आज आपकी 35 वीक प्रेगनेंसी है बट आपका शुगर है 250, तो सिजेरियन कर दो. सो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन. अगर 250 शुगर अगर आपके 8वें 9वें मंथ में आ रहा है तो देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग. जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि भाई अगर आपका टारगेट के ऊपर आ रहा है तो इमीडिएटली एक्शन लेनी है. जैसे आपके डॉक्टर है, जैसे हमने सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बोला था एक टाइम पे, उसका भी सेशन किया था. तो प्रेगनेंसी इज अ फेज. वहां पे अगर आपको शुगर आता है तो यू आर अ पर्सन जिसको डेली शुगर मेजर करनी है. ठीक है? अगर आप डाइट एक्सरसाइज से कंट्रोल हो फिर भी चेक करना है, और अगर आप इंसुलिन पे हो तो चेक करना ही करना है. ठीक है? तो वंस यू स्टार्ट फीलिंग योर शुगर इज नॉट गेटिंग अंडर कंट्रोल, यू कैन नॉट अलाउ इट टू रिमेन एट 200 लेवल, 250 लेवल. तो वो लेवल अगर 35-36 वीक में है तो उसके बाद सिजेरियन कर देना है. दैट इज नॉट द केस. ठीक है? तो अगर शुगर ज्यादा है तो शुगर को कंट्रोल करना है. Unless there is obstetric indication from mother or fetal point of view, the cesarean is not indicated just because of high sugar. That is the most important point, because many a time we do get call regarding this as well कि भाई इसका 300 शुगर है, सिजेरियन कर दे. अरे ना भाई, 300 शुगर है तो आप उसकी जो थेरापी चल रही है, डाइट एक्सरसाइज चल रहा है, उसके ऊपर फोकस करो. 2-3 दिन में उसको धीरे धीरे करके कंट्रोल कर दो अच्छे से. ठीक है? 300 शुगर 250 शुगर आया तो सिजेरियन नहीं कर देना अनलेस इट इज इंडिकेटेड फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट मैसेज आई वांट टू पास, दैट जस्ट हाई शुगर इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन. Right, sir. Right, sir. Right, sir. So we are done with our questions. May I please have your questions? All right. So Janvi is asking, how can gestational diabetes be prevented? Very good question, right? See, in as such, we want to prevent diabetes at any cost, not only gestational, but even in all Indian population, right? So now in recent year, there are many programs going on from government. There are many awareness is being there are many awareness in general population as well regarding prevention, right? And as we know that prevention is always better than cure, right? So किस लेडी में हमें प्रिवेंट करने का जरूरत पड़ेगा कि जो भी हाई रिस्क लेडी है, राइट? जैसे हमने पहले इनिशियल क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि भाई जिसका वेट ज्यादा है, जिसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, खाना एक्सरसाइज नहीं है, जिसका फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, जिसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी शुगर थी या बच्चों की वेट ज्यादा थी. सो दीज ऑल आर हाई रिस्क लेडीज, राइट? सो there is a very important sub branch of obstetric in today's healthcare is preconceptional counseling, preconceptional checkup, right? So
मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड फैमिलीज नाउ आर डूइंग दिस कि जब भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है सो दे गो टू द फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के भाई हम प्लान करना चाहते हैं, तो आप आपकी ओर से एडवाइस दो। तो बेसिकली वो बेसिक चेकअप करेंगे, आपका कुछ ब्लड रिपोर्ट करेंगे, कुछ सोनोग्राफी वगैरह देख लेंगे, अगर आपकी लाइफस्टाइल है उसको रिव्यू कर लेंगे, डाइट वेट आपका क्या है, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, ये सब चीजें वहीं पे देखी जाएगी, राइट। खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं उसको B12 फोलिक एसिड का सप्लीमेंट देना, हीमोग्लोबिन ठीक रहना, आपके कोई पैरामीटर जो रिपोर्ट्स में जो 19-20 आते हैं उसको ठीक करना। सो इन सेम रिगार्ड जेस्टेशनल डायबिटीज को प्रिवेंट करना है तो यू नीड टू बी अवेयर बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी, राइट। मिनिमम 6 से 8 महीने पहले से अभी आपकी शादी हुई है, 2 या 3 साल तो आप नहीं बच्चा करने वाले हो, उसके बाद अगर करने वाले हो तो उससे कुछ महीने पहले आपको चेकअप कर लेना है कि भाई अभी क्या स्टेटस चल रहा है, हाउ इज माय शुगर, हाउ इज माय लिवर किडनी हार्ट रिपोर्ट, हाउ इज माय कोलेस्ट्रॉल लेवल, राइट। ये सब चीजें चेक करनी है। अगर वो बड़ी हुई है तो क्यों बड़ी हुई है, वेदर द फॉल्ट इज एट योर level, whether it is your genetics, your family history which is taking part, are you in need of medication और या आपका लाइफस्टाइल से ठीक हो जाने वाला है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एट यंग फीमेल लेवल डाइट एंड एक्सरसाइज, अगर आप ओबेस हो, अगर आपको हाई रिस्क है और आप आइडियल वेट अचीव कर देते हो डाइट एंड एक्सरसाइज से, एंड देन यू प्लान अ प्रेगनेंसी एंड बिकम प्रेग्नेंट, देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट यू मे नॉट गेट शुगर, और इफ एट ऑल सम elevation of sugar comes, it will be managed with diet and exercise only, right? So it can be very well be prevented if you are taking prior precautions, prior consultations, prior checkups, right? Diet and exercise is pillar in that regard, and if at all needed, some medications, right? All right, sir. Thank you, sir. Next question, please. Acha, Vipin is asking if anyone has gestational diabetes, what happens next? So I think this question is already been answered in previous one of the question, but to re-emphasize, if you again ask that जैसे मैंने बोला कि जेस्टेशनल डायबिटीज के वेरियस लेवल पे टाइमलाइन पे वेरियस इम्पैक्ट है मदर को, बच्चों को। सो देयर आर सम इम्पैक्ट to mother during pregnancy, there are some impact to fetus during pregnancy which are not good, there are some impact to both at the time of delivery, चाहे फिर वो नॉर्मल आपने करी, सिजेरियन करना पड़ा था, असिस्टेड डिलीवरी करना पड़ा था, तो इमीडिएटली डिलीवरी के वक्त के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को, चाहे मदर में सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस था, हेमरेज था, इन्फेक्शन था, या फिर बच्चों में प्रीमेच्योरिटी थी या बर्थ इंजरी थी, या डिलीवरी के बाद हाइपोकैल्सियमिया हाइपोग्लाइसेमिया था, या व्हाटएवर, राइट। तो ये सब चीजें आती है, एंड लॉन्ग टर्म दिस बोथ पर्संस, be it mother, be it a bachchu, both are at risk of development of type 2 diabetes, development of metabolic syndrome, development of their complications as well, right? So most of the time पे अगर वो true gestational diabetes था तो almost 90% वो immediate delivery के बाद ठीक हो जाने वाला है, but जैसे मैंने पहले बोला, I would again re-emphasize कि कहानी वहां खत्म नहीं होती। Right, sir. So James is asking, what can one do to lower the risk of developing diabetes? Yes, again this will relate to the first question which was asked by the first viewer कि भाई आपको अगर रिस्क आपको डेवलपमेंट का डायबिटीज का अगर कम करना है, सो 4 थिंग्स, जैसे अगेन एंड अगेन यही चीज आएगी कि आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, विच शुड नेसेसरीली इंक्लूड एक्सरसाइज, राइट। अगर कोई मेडिकेशन की आवश्यकता है तो वो, एंड एडिक्वेट डिस्ट्रेसिंग, राइट। अगर हम आज की अगर बात करें, अगर हम एक एग्जांपल ले कि भाई अ पर्टिकुलर लेडी who is of 30 to 35 years of age, because of career and all, she got married just recently after 31 year of age. She is a corporate employee, always stressful, overburdened. Husband is also working, they are in a nuclear family, so not much help from parents at the moment. So if this particular person, if he is having a family history of sugar, if she is obese, she is not able to maintain a routine diet and exercise, तो अगर ये लेडी को अगर डायबिटीज प्लान करना है, प्रेगनेंसी प्लान करना है, या अगर प्रेगनेंसी थोड़ी देर हम साइड में रख लेते हैं, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री ज्यादा थी, वो ऑलरेडी ओबेस हो चुकी है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वर्क कर रही है, देन दिस इज द टाइम
once you are 30 to 35, this is the time कि भाई आपका एक तो चेकअप हो जाना चाहिए, राइट? अभी तो धीरे धीरे ये जो हेल्थ चेकअप्स का एज आ रहा है, पहले ऐसा बोला था कि 50 के ऊपर चेक करो, फिर ऐसा आया 40 के ऊपर चेक करो. नाउ देयर इज नो लिमिट. इफ यू आर एन एडल्ट यू मस्ट बी चेकिंग ऑल दिस इश्यूज. ठीक है, अगर 18 आपका हो गया तो उसके बाद से आपको चेकअप चालू कर देना है. दैट इज व्हाई इफ यू आर गेटिंग एंट्री इनटू एनी ऑफ योर कंपनीज देयर इज मैंडेटरी प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप, जिसमें शुगर तो होता ही होता है, राइट? बट अगर उसको और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाए तो दैट इज द एक्चुअल पॉइंट. एट दैट टाइम यू शुड बी चेकिंग ऑल द मेटाबॉलिक पैरामीटर्स. आपका लीवर कैसा चल रहा है, किडनी कैसी है, कोलेस्ट्रॉल था या नहीं, विटामिन लेवल्स ठीक है कि नहीं. दिस ऑल आर द थिंग्स दैट यू शुड बी चेकिंग. इट्स नॉट शुड बी अ फॉर्मेलिटी कि ना कंपनी ने बोला है इसलिए हमने कर लिया. ठीक है, तो एक थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा बिहेवियर चेंज हमें अपने आप में लाना है कि भाई रिपोर्ट बोला है. इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सर्टेन कि अगर आप 20, 25, 30 के हो तो आपको कोई सिम्टम नहीं होगा. तब सर मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्यों करूं? ठीक है, देयर शुड नॉट बी दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड. अगर आपको बोला गया है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस है, तो आप जाओ अच्छे से चेक करो. या फिर अगर उसने 2-4 चीज ही बोली थी और आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल का हिस्ट्री था, हार्ट का हिस्ट्री था, ब्रेन का हिस्ट्री था, आप उसके रिलेटेड भी चेकअप कर लो. तो अगर आप चेकअप करोगे तो उसको आगे डेवलप करने से बच पाओगे, राइट? अगर आपने चेकअप कर लिया कि भाई हम तो प्री डायबिटीज फेज में आ गए हैं, हमारा तो ये फास्टिंग ज्यादा है, खाने के बाद का अभी भी ठीक है, या फिर फास्टिंग ठीक था, खाने के बाद का बड़ा हुआ था, या फिर हल्का सा कोलेस्ट्रॉल आने लगा है, या फिर मेरा बीएमआई तो भाई 21-22 हुआ करता था जब मैं पढ़ता था तब, अभी तो ये 27, 29, 30 आने लगा है. सो दीज आर द चेकअप्स, राइट? सो यू नीड टू एडिक्वेटली चेक योरसेल्फ. अगर शुरुआत में ठीक है तो अगर आप यंग हो, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो आप 5-5 साल में चेक करो. अगर यंग है, कोई फैमिली हिस्ट्री है तो 1 या 2 साल में ये सब चीजें चेक करो. अगर चेक करोगे देन यू कैन एडिक्वेटली असेस योर रिस्क. एंड वंस यू नो द रिस्क देन यू एडिक्वेटली टेक द स्टेप कि भाई आपको डाइट के ऊपर रहना है, एक्सरसाइज करके वेट लॉस करना है, कोई मेडिकेशन की आवश्यकता है, ठीक है, या स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें कोई बिहेवियर चेंजेस लाना है. सो these are the things. So be aware of yourself, adequately check yourself, and whatever risk is there try to address with diet, exercise, your lifestyle, de-stressing, and if at all needed medication. This is how you can reduce the risk of development of diabetes. Your voice is not audible. Am I audible now? Yes. All right, sir. Sir, so Rahul is asking, how could gestational diabetes affect a woman's health? Yes, obviously, Rahul, I think we have discussed this question in detail, but to re-emphasize that कि भाई पूरी टाइमलाइन में इफेक्ट आएगी कि भाई आपका प्रेगनेंसी का टाइम, डिलीवरी के बाद के कॉम्प्लिकेशंस, एंड नॉट ओनली दैट, वंस जेस्टेशनल डायबिटीज इज गॉन, मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीबडी आर रिलैक्स कि अभी बच्चों को भी दूध पिलाना है, आप भी रेस्ट पे हो. Suddenly you are the most important person in your family. आपके सास, ससुर, husband, everybody is taking care of you. You are eating best possible high calorie rich diet, sweets, good, ghee, oil, everything you are taking, right? So the gestational diabetes impact which was there in pregnancy, which generally goes after pregnancy, is very easy to come back, right? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगले 10 साल में अगर हम gestational diabetes मदर को फॉलो करते हैं तो 40% of mother will become type 2 diabetic patient in future, right? So it affects your woman's health very badly, not only during pregnancy time but after pregnancy time as well. So that is why you need to remain awake. Once you were gestational diabetic during your pregnancy time, even though your post-pregnancy sugars are normal, check it every yearly. ट्राई टू कंटेन योर वेट. हाँ, बच्चों को ग्रो करवा रहे थे आप, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे कुछ महीने, दैट वाज पार्डनेबल थिंग बिकॉज वी आर thoroughly dedicated to health of our bachchu, that is fine. But as soon as your bachchu becomes little bit older, you started getting time for yourself. Don't neglect. We today even we see कि सर वो सिजेरियन किया था 20 साल पहले, उसकी वजह से वेट बढ़ गया. अरे भाई, सिजेरियन किया था तो वेट कैसे बढ़ गया? वेट कोई 20 साल में आज तो बड़ा नहीं थे, धीरे धीरे अगर आप तब 50 के थे तो आज अगर 90 के हुए हो तो 70 के हुए, तब तो ध्यान में आना था कि भाई हम 70 के हो चुके, हमें कुछ करना है
ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे बिहेवियर में लानी है कि भाई सिजेरियन किया, बच्चों को बड़ा किया, फिर घर में लग गए, काम पे लग गया, दैट इज डिफरेंट बॉल गेम, बट डोंट निग्लेक्ट योर हेल्थ एट दैट टाइम। बच्चों बड़ा हुआ, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी कम हुई, फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज था, इट इज वेरी वेल कनेक्टेड, यू आर गोइंग टू बिकम सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन हैव सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर। तो अगर वेट बढ़ता जा रहा था तो चेक इट, टेक एक्शन, फॉलो डाइट, डू एक्सरसाइज एंड प्रिवेंट ऑल दिस थिंग्स। अगर वो आप कर लोगे, अगर 35 में आपको डिलीवरी हुई थी, 36 37 तक ध्यान नहीं रख पाए अपना, ठीक है, बट 50 आते आते अगर 90 के हो जाते हो तो ये चीज नहीं होने देनी है, बीच में ही कहीं पे पकड़ लेना है कि भाई वी आर नाउ फेलिंग आउट, राइट। सो हमें वहीं पे पकड़ लेना है। सो देयर इज अ वेरी वेरी बिग इंपैक्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ, नॉट ओनली हेल्थ, दे स्टार्टेड बिलीविंग कि यार ये तो ऐसा ही होने वाला है, सिजेरियन किया था तो अब ये बढ़ेगा ही, सिजेरियन किया था तो बैक एक होने ही वाला है, सिजेरियन किया था तो एक्सरसाइज तो होगी ही नहीं। दिस आर नॉट द केस। अगर सिजेरियन किया था, आपको कोई इश्यू है, गो एंड मीट योर डॉक्टर, आस्क देम कि सर मैं अभी ये वेट करूं, ये एक्सरसाइज करूं, फिजियोथेरापी करूं, जिम ज्वाइन करूं, तो इज देयर एनी हैजार्ड देयर, देन व्हाई इट इज देयर, मुझे इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, ये सब चीजें डिस्कस कर लो, रादर देन पुटिंग अ बार फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी कि ये तो नहीं होगा एंड यू आर जस्ट गेनिंग। यू जस्ट आस्क योर डॉक्टर कि सर अभी क्या करें, अभी मैं प्रेगनेंसी के टाइम से 5 किलो बढ़ गई हूँ, 10 किलो बढ़ गई हूँ, तो अभी क्या करना है, तो टाइमली एक्शन ले लेना है हमें, राइट। तो देयर इज अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ आफ्टर gestational diabetes, which we need to prevent. True, sir. True. Very true. Right, sir. So, next question is from Dr. Megha. She's asking, how could gestational diabetes affect the baby's health? अगेन ये सब चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था शुरुआत के क्वेश्चन में कि भाई बेबी का दोनों तरह से पॉसिबल है। एट वन एंड यू कैन हैव लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी, दैट इज मैक्रोसोमिया on one hand because of preeclampsia is simultaneously associated with GDM, then you can have intrauterine growth retardation and small birth weight is possible. So during pregnancy अगर large बच्चों है, during delivery large बच्चों है, तो बर्थ इंजरी होना, शोल्डर डिस्टोसिया होना, ये सब चीजें कॉमन है। अगर स्लो बच्चों है तो बिकॉज ऑफ दैट प्रीमेच्योर बर्थ या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इमीडिएटली बर्थ के बाद हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सिमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, polycythemia, thick blood, these all are the things which has been associated with बच्चों which is born to the gestational diabetes mother, right? फिर obviously this is going to impact the immunity of the child once it grows older, right? And not only that, once become an adult, the chances of him or chances of he or she develops type 2 diabetes or metabolic syndrome or cholesterol or some cardiovascular diseases on higher side. So this is how it can affect the baby's health throughout his life. Not only he or she is baby, but throughout his life, even he or she becomes adult, right? Right, sir. Sir, the last question I have is, what precaution should a woman take who is already diabetic and planning a pregnancy? Yes, very important point. So you are fortunate enough कि आपको पहले से पता है कि आप डायबिटिक हो, डायग्नोस हो चुका है और आपको प्रेगनेंसी अभी प्लान करने का टाइम आया है। So yes, try to make sure कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हो उसके 3-4 महीने से आपने आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस, ठीक है, प्रेगनेंसी करना था तो फोकस करना ही है, बट अदरवाइज आप डायबिटीज है, प्रेगनेंसी नहीं भी करना था तो थोड़ा फोकस रखना ही है कि भाई आपका एक जो वेट है वो आइडियल वेट होना चाहिए, जो शुगर वैल्यूज आपकी है वो कंट्रोल में रखनी है, आपका जो HbA1c है अगर 6.5 के करीब आप रखते हो, those who are already diabetic, then it is an ideal range। अगर आप 6.5 रखते रखते हाइपोग्लाइसेमिया हो जाने लगता है तो आप 7 के नीचे रखो। तो शुरुआत के जो 3-4 महीने है प्रेगनेंसी के पहले के, बी इन स्ट्रिंजेंट टच विथ योर डॉक्टर, राइट, कीप योर शुगर एट बेस्ट पॉसिबल लेवल्स। खास करके जो आपका इंसुलिन रिक्वायरमेंट है या मेडिकेशन रिक्वायरमेंट जो थी वो स्टेबल हो जानी चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक वेरी मच फ्लक्चुएटिंग, राइट। सेकेंडली, अगर आप प्रेगनेंसी डायबिटीज ऑलरेडी है और प्लान करने वाले हैं तो जस्ट गो थ्रू योर कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग, check your kidneys, liver, fundus, heart, everything should be fine. If it is fine, then it is good control, then you are at best possible body weight, and your doctor will immediately tell go ahead with your pregnancy. And always make sure that you take
adequate B12 and folic acid supplements prior to pregnancy to avoid neurological tube defect, right? So that is very very important point. I will again re-emphasize कि अगर आप वेजिटेरियन है, खास करके अभी भी इंडिया में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है, so try to get adequate B12 and folic acid supplements at least 2 or 3 months before you plan pregnancy, right? Because of course अगर आपने कंट्रोल किया है डायबिटीज, still there is some risk of नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये सब रिस्क भी अराउंड लेस देन 1% रहते हैं। तो अगर डायबिटीज है, चाहे कंट्रोल ही क्यों ना हो, तो ये रिस्क आपको दिमाग में रख के उसको अच्छे से कंट्रोल करना है। B12 फॉलिक एसिड सप्लीमेंट रखना है, कॉम्प्लिकेशन स्क्रीन कर लेना है, शुगर वैल्यू स्टेबल रखना है, आपका जो भी दवा इंसुलिन चल रहा था उसको स्टेबल रखना है, देन यू कैन ऑलवेज become pregnant. There is no issue, and after becoming pregnant there is a very big chance that the need of your ongoing insulin may fluctuate, so you need to adequately monitor your sugars depending on your doctor's advice, and then sometimes you may need to change insulin as well. Sometimes your dosage will be changed, sometimes your modalities will be changed, so these all are the things that you should be looking forward. आपको डॉक्टर को इसमें लुक में रखना है, डायबिटीज के डॉक्टर को, और वो आपको कांस्टेंट गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द 9 months। कैसे इंसुलिन लेना है, कैसे डाइट पे फोकस करना है, कैसे ईच ट्राइमेस्टर में आपकी कैलोरी वैल्यू को थोड़ा हमें जस्टिफाई करना है, थोड़ा बढ़ाना है बट इतना भी नहीं बढ़ाना कि शुगर अफेक्ट होने लगे, बट बच्चों का ग्रोथ अफेक्ट ना हो, बच्चों का एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग आपके ऑब्स्टेट्रिशियन करेंगे। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। देयर इज नॉट एन इश्यू एट ऑल। इन फाइट यू आर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक, यू कैन ऑलवेज बिकम प्रेग्नेंट एंड यू कैन ऑलवेज हैव अ हेल्दी बेबी। Right, sir. So, sir, we are almost done with our questions, but do you have any other information? Like, would you like to share any other information apart from all this? Sorry, I didn't get your question. We are done with our session, but do you have any other information to share with our viewers? ना, see, regarding gestational diabetes, as I know that universal screening, ठीक है, आज अभी भी अगर हम देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली सारे प्रेग्नेंट मदर का स्क्रीनिंग नहीं होता है, और बहुत बार वो काफी लेट पकड़ में आते हैं। And if at all you are doing screening, just do with 75 gram glucose regardless of fasting or fasting state of your pregnant patient. If you will implement this, then definitely we can catch up all the pregnant females. And once we catch up, there are enough doctors available nowadays, enough expertise available in your regard. Try to get the best possible expertise in your city, in your area, and get your sugar managed. And obviously you are going to have very healthy baby, very healthy future. And the things does not end once you deliver the baby, so you need to be careful enough throughout of your life to avoid all these nasty diseases in your upcoming years, right? That's it. Thank you so very much, sir. I would like to tell our viewers, if you have any other questions, if you want any other information from Dr. Unadkat, please comment in the comment section and we'll get back to you soon. Thank you so much, sir. Thank you so much for the lovely session. Thank you. Grateful to you, sir. Yeah, bye-bye. Take care.